عدالت عظمیٰ کی طرف سے کل جموں کشمیر میں 370 اور 35A پر فیصلہ سنائے جانے کے بعد مختلف سیاسی پارٹی کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ظفر مناز صاحب، ان سے جانیں گے کس طرح دیکھتے ہیں صاحب اس فیصلے۔ مناز صاحب، کل کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ایک بار پھر گلستان کے ناظرین سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اگر آپ نے میرا کل کا سٹیٹمنٹ سنا ہو جو عدالت عالیہ کے فیصلے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے میں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا، تو میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا یا جو اندازہ میں نے حالات کے تناظر میں جو اندازہ لگایا تھا یا 2 مہینے پہلے جو بات میں نے کہی تھی، تو تقریباً وہ ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی۔ تو اب عدالت کے فیصلے کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے اندر ظاہر سی بات ہے، جموں کشمیر کے اندر بلکہ میں کہوں گا جموں کے اندر بھی ایک بڑا حلقہ ہے جنہیں اس فیصلے سے خوشی بالکل نہیں ہوئی ہے۔ کشمیر میں بھی یہ معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ اس میں عدالت سے زیادہ میرے خیال میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ یہ کوئی براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کی بات نہیں ہے، جنہوں نے محض میں سمجھتا ہوں اس کو میں سیاسی جگلری کہوں گا، بڑے ادب سے کم الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جنہوں نے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلائیں، جنہوں نے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جب ایک بل پاس ہو گیا اور اتنی میجارٹی سے ہو گیا، اور جس بل کو یا جس فیصلے کو بی جے پی کی سرکار نے ملک کے عوام کے اندر بھی کافی پذیرائی، اس کو ایک انڈورسمنٹ ایک دلوا دی، بلکہ انہوں نے اس کو الیکشن کا مدعا بنایا، تو یہ اتنے بڑے فیصلے کو وہ بھی جانتے تھے کہ ریووک نہیں کیا جا سکے گا، شاید کورٹ بھی نہ کر سکے، اور وہی ہوا۔ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے پورے داؤ پیچ لڑائے تھے۔ تو انہوں نے یہ میرے خیال میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں کہ یہ ایک غیر سیاسی، غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور جن لوگوں نے کیا شاید وہ کوئی وقتی فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ انجام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک بار پھر لوگوں کو مایوس کیا، اور شاید جو ایلینیشن موجود ہے اس میں اور اضافہ کرنے میں ایک اپنا رول پلے کیا۔ مناز صاحب، کل کے فیصلے کے بعد عمر عبداللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا مایوس ہوں، دل شکن نہیں ہوں۔ کانگریس نے کہا عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں مگر اتفاق نہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا عوام میں تشویش لاحق ہے۔ دوسری طرف جو چیز دیکھنے کو ملی، آزاد صاحب نے کہا کہ جموں کشمیر کے مستقبل پر سوالیہ نشان۔ بڑی چیز دیکھنے کو ملی کہ محبوبہ مفتی کی طرف سے کہا گیا فیصلہ پڑاؤ ہے، منزل نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ فیصلہ ایک پڑاؤ ہے، منزل ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی اس فیصلے کے بعد آگے کیا پھر؟ دیکھیے، اگر آپ ہماری 75 سالہ تاریخ کو لے جائیں، 1931 سے آج تک جو بھی لیڈرشپ آئی، اچھی بری، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جن کو لوگوں میں پذیرائی حاصل ہوئی یا جن کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، جملہ بازی میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی سارے بیان ہیں یہ جملہ بازی ہے، اور یہ ایک کھانا پوری ہے۔ اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کہنے کی بات ہے جی میں مایوس ہوں، دل شکن نہیں ہوں، یا یہ پڑاؤ نہیں ہے۔ پڑاؤ کیا ہے؟ پڑاؤ کی نشاندہی کرے، آپ کا پڑاؤ ہے کیا؟ پہلے بات سیدھی سی ہے، یا تو آپ نے یہ فیصلہ ماننا ہے، اور جو کچھ بچا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، یا آپ نے کنفرنٹیشن کا کوئی دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس تو اس کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ اس فیصلے سے واقعی ہماری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اگر وہ مایوس ہے، اگر لوگ نا امید ہیں یا وہ سمجھتے ہیں ظلم ہوا ہے، تو وہ ظلم کے خلاف مجھے بتائیں۔ پھر پالیٹکس میں ان کو تو الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہی تو ہماری سیاست میں ایک منافقت کا عنصر جو ہے وہ داخل ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، چلو اب ہم نے جی اس روز یہ کہا تھا، لیکن گراؤنڈ پر پردے کے پیچھے ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔
मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप इतने सीरियस थे 370 को लेकर, जब जब आपको मौका मिला, जब जब आपकी हुकूमत थी, तब आपने 370 को मजबूत करने के लिए क्या किया? जब आप नेगोशिएशन की पोजीशन में कुछ न कुछ थे, तब आपने तो अपनी हुकूमत बनानी नेगोशिएट की। आपने पावर शेयरिंग में तो बड़े बड़े कमाल दिखाया कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, लेकिन 370 हो, कश्मीरियों की अटानमी हो, जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक हों, उन पर आपने कब कोई सीरियस गुफ्तगू की? कौन सा सीरियस डिबेट किया? कौन सा सीरियस डिस्कशन किया? तो अब मैं सीधी बात कहूँगा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर 370 के खात्मे के वक्त एनसी ने के 3 लोगों ने रिज़ाइन किया होता, अगर पीडीपी के 2 लोगों ने रिज़ाइन किया होता, तो मैं समझता कि शायद ये लोग सीरियस हैं। उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शन का बिगल बजा, अगर ये उस रोज़ भी कोई बाइकाट करते या कोई एजिटेशन करते तो मैं मानता। अगर इन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए लोगों को सड़कों पे बाहर लाया होता तो मैं मानता, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए। कल इतना बड़ा फैसला हुआ तो कल लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन इनकी तरफ से, इनकी पार्टी ने इतने जलसे ये करते हैं, तो अगर ये कहीं निकले हों जेल जाने के लिए, मार खाने के लिए, गोली खाने के लिए, तो मैं मानता। उसके लिए तो ये बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये तो महज वो एक खाना पूरी है, लफ्ज़ों की जादूगरी है, या लफ्ज़ों का जो जगलरी जिसको कहते हैं। मैं इससे ज़्यादा इसकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बयान की कोई अहमियत नहीं, उसमें सब पार्टियों को मैं शामिल करता हूँ। और आपने आज़ाद साहब का कहा या कांग्रेस का जिक्र किया, तो इस सारी तबाही बर्बादी का सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं पूरी ध्यानदारी से कांग्रेस को ठहराता हूँ। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह की दोगली पॉलिसी जो है, मुझे माफ़ करें, अपनाई है। वो इतना ही फ़र्क है कि कुछ लोग सामने से वार करते हैं, कुछ पीछे से करते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा गले से लगा के पीछे से छुरा घोंपा है। तो कश्मीर में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई, अटानमी का जितना भी कत्ल हुआ और जमहूरियत का जितना भी कत्ल हुआ, इलेक्शन में जितनी धांधलियाँ हुई, 370 के जैसे जो खिलवाड़ हुआ, अटानमी के साथ जो हुआ, तो वो सारा कुछ कांग्रेस ने किया। और उसमें वो लोग कहीं ना कहीं शामिल रहे, रीजनल पार्टीज़ जो हैं आज, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिल वास्ता या बिला वास्ता। सर मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इन एक सियासी लड़ाई हम समझते थे 370-35 को अदालत में ले जाना, क्या इन लोगों को इस चीज़ का एहसास था कि अदालत में ले जाया जाएगा? क्योंकि कई किस्म की बातें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अदालत में ये लोग इसलिए गए थे, सोचेंगे कि कई साल तक ये लटका रहेगा। आप लोग अदालत का रुख आपने नहीं किया है। आप क्या आज अपने फैसले को दुरुस्त समझकर उनको किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात है, मैंने पहले ही कहा कि सबों को पता था, जम्मू कश्मीर के अवाम की बड़ी तादाद को इस बात का पता था कि फ़ैसला क्या आएगा। इस बारे में कोई ज़्यादा गलत फहमी कहीं पर नहीं थी। मैंने कहा ना कि इन लोगों ने खुश फहमी की, खुश उम्मीदी की एक लहर क्रिएट करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में इनके जहन में तब ये था कि ये 2-3 साल तो चलेगा ही, जैसा 2-3 साल तो लग ही गए, तो ये समझते थे तब तक असेंबली के इलेक्शन भी डीडीसी इलेक्शन की तरह हो जाएंगे, तो हम अपने हिस्से का जो इसका प्रीमियम है, इस मुकदमे का जो सूद है, जो मुनाफा है, वो हासिल करेंगे। असेंबली इलेक्शन में 370 की डफली बजाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम वहाँ केस लड़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े वकील हैं। तो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, बीजेपी वाले जो हैं, जिनके पास हुकूमत है, तो वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने भी उसी हिसाब से सारा कुछ किया। आप देखें कि 2 साल तो पहले केस चला ही नहीं, 2-3 साल तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हुई तो यकलखत हुई, फिर फैसला महफूज हो गया, फिर अचानक फैसला आ गया, फिर अचानक इलेक्शन की बात आई। तो ये एक बच्चा भी जानता था कि हालिया जो स्टेट इलेक्शन के फैसले आए, उनके बाद एक आम आदमी भी सोच रहा था कि अब बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन के आगे पीछे या उसके 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन भी करेगी, क्योंकि ज़्यादा देर वो आप इसको टाल नहीं सकते। तो इनका मकसद वही फ़ायदा हासिल करना था, एक बार फिर अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करना था। मौलाना साहब, आपकी जमात इक़्तिदार में अगर आती है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरियों और यहाँ की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जाएगा फिर आपकी तरफ से? देखिए, एक बात मैं बड़ी सफाई से कहूँ, अभी इलेक्शन जब होंगे, इक़्तिदार में जमात कौन सी आती है, अगर हमारी जमात आती है तो पहले तो ये तय करना है कि हमारी जमात अगर इक़्तिदार में आती है, क्या वो एक पार्टी की हुकूमत होगी? फिर सिचुएशन एक बनती है। दूसरा ये होता है कि भाई क्या एक
कोलेशन गवर्नमेंट होगी तो फिर सूरत हाल उस तरह की बनती है। कोलेशन में हमेशा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जाना पड़ता है। अब आपने दो बातें कही हैं, जहाँ तक ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, अपनी बसात के मुताबिक ये जानते हुए कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, ये जानते हुए कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं, ये जानते हुए भी कि हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं हुआ पहले मतलब शेख साहब को हासिल था या पीडीपी को पहले हासिल था, फारूक साहब को हासिल था। इसके बावजूद अगर हमने आग में छलांग लगाई, ताने सुने, गालियाँ सुनी, बी टीम का हमें इल्ज़ाम भी सुनना पड़ा उन लोगों की तरफ से कि जो 75 साल से मरकज़ के इशारों पे नाचते हैं, उनके कहे पे चलते हैं, उनके कहे पे वोट हासिल करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि एक तरफ इक़्तिदार में आते हैं, दूसरी तरफ से वो कश्मीर के मखसूस हालात, यहाँ जो दूसरी बातें हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने 70 साल एक तरफ से इक़्तिदार पर राज ताज किया, दूसरी तरफ से एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट जज्बात को अपने तरीके से अपने वक्त पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिससे ना कश्मीरी हिंदुस्तान का रहा, ना हिंदुस्तान के अवाम कश्मीरी के साथ उतनी वो हमदर्दी रह सकी, एक तरह की दूरी पैदा हो गई। बल्कि जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शन में जीत के लिए कुछ लोगों ने ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खासकर कांग्रेस ने खेली, वो सबके सामने है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़मीन के बारे में पहले दिन से, जब हम गवर्नर इसे प्राइम मिनिस्टर से मिले और दिन दहाड़े मिले, होम मिनिस्टर से मिले, डंके की चोट पे मिले, सारा मीडिया मौजूद था, तो हमने उस वक्त भी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। बल्कि एक आध बार कुछ गलत फ़ैसले आए जो हमें लगा गलत हैं, तो हमने उनसे बात भी की, हमने उनको समझाने की भी कोशिश की, कुछ गुजारिशात भी की, तो उनको हमने रिवोक भी करवाया। और हमें कहा गया कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है इसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। जहाँ तक नौकरियों का ताल्लुक़ है, नौकरियों के लिए अब एक बाज़ाब्ता सिस्टम है, वो पहले की तरह अब नौकरियाँ किसी भी जगह, ये हमारी ये बदकिस्मती से जिसको यूटी कहना पड़ता है, यूटी हो या बाकी स्टेट्स हो, तो नौकरियां कम हो रही हैं। जितना टेक्नोलॉजी का फ़्लो आ रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत कम हो रही है, तो नौकरियों पे उसका असर तो पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं लोगों को नौकरियां मिलें और साफ़ और शफाफ तरीके पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरियां ही ना मिले, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चूँकि 370 ख़त्म कर चुकी है, तो अब वो कश्मीरियों को बड़े ख्वाब उनने इन बरसों में दिखाए हैं। तो अब ये है कि वो लोगों को नौकरियाँ दें, उनको प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट करें, प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत किया जाए कि लोगों को दर दर के धक्के न खाना पड़े। ये इसके लिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे, नौकरियों को लेकर भी और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी। इतना ही नहीं, हम अपनी बसात के मुताबिक लोगों के, जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात जो हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की दयानतदाराना कोशिश हम करेंगे भी और हमें करनी भी चाहिए। आखिरी दो सवाल मेरे। कल वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से ये कहा गया कि इंतहा पसंदी छोड़कर, हथियार छोड़कर जो लोग वापस टीम लाइन में आएंगे उनका वेलकम किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो लोग संगबाज हैं उनके मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से कहा गया कि कभी उनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, कभी उनके रिश्तेदारों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी, और ऐसे केसेस में कई लोगों को नौकरियों से बर्खास्त भी किया गया। किस तरह देखते हैं आप इनके इस फैसले को? मेरे ख्याल में देखिए, मैं इस फैसले को वेलकम करूँगा अगर ये फ़ैसला दयानतदारी पे और नेक नीति पे हो। मसला ये है कि इससे पहले भी लोगों ने, देखिए 90 में एक सैलाब आया, इतने लोग मिलिटेंट आए, कहाँ से आए, आसमान से तो नहीं ना उतरे, इतने लोग पार गए। तो देखिए इसके लिए तो सियासतदानों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो लोग चले गए, हमारे बॉर्डर्स पे कहीं हमारी कमज़ोरियाँ थी, पोरस बॉर्डर था, क्या था मुझे नहीं पता है, तो पार वाली जो हमारे हमसाया हैं वो कामयाब हो गए। तो उस वक्त लोग, एक सैलाब में लोग बह गए। उसके बाद जब वाजपेयी साहब की हुकूमत आई या उससे पहले जो दूसरी हुकूमतें थी या मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने एक बड़ा दिल दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट की कि भाई हम लोगों को माफ़ी का ऐलान करते हैं। जो लोग तशद्दुद का रास्ता, उग्रवाद का रास्ता, आतंकवाद का रास्ता छोड़ के आएंगे उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो फिर सरकार को एक कट मार्क लगाना चाहिए ना, आप कब तक माफ़ी देते हैं, कब से माफ़ी नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है। आज भी वेरिफिकेशन सी लोगों की हो रही है। एक तरफ से लोगों को नेपाल के रास्ते से कश्मीर लाया गया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से आए ना। आज इनको ये सारा कुछ बुरा बुरा लगता है। तब किसकी हुकूमत थी जब ये लोग
मुजफ्फराबाद से इनको पासपोर्ट बना कर देते थे हुर्रियत लीडरों को। वाजपेयी साहब के ज़माने में हुर्रियत लीडर कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, पाकिस्तान एम्बेसी में भी जाते थे। ये नहीं कि उन्होंने गलत किया, उस वक्त हालात उसी किस्म के थे। आज आप जीते हुए हैं, आपने फतह हासिल की है अपने सोच के मुताबिक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, कि वो अब जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की बात करें। फतह तो उन्होंने हासिल कर ली है, तो दिल जीतना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फतह के नशे में रहेंगे तो जहर उधर ही रहेगा, तो फिर ये बात बनेगी नहीं। मैं समझता हूँ दयानतदारी से सरकार को खुले दिल से, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, बीजेपी का दिल नहीं हिंदुस्तान का दिल जितना है उतना बड़ा दिल करके, जो पीछे हुआ है उन लोगों को जो किसी कत्ल में मुलविस नहीं है या जिन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, जिन लोगों ने पत्थर फेंके 2016 में एक माहौल में निकल गए बच्चे, उनको माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें एक मौका सुधरने का देना चाहिए, उनके लिए खुले दिल से उनको कबूल करना चाहिए। आखिर सवाल एक पूछना चाहूँगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग हैं जो आज बीजेपी में हैं, उनका भी तो पास्ट इतना शानदार नहीं था। अगर उनके लिए माफ़ी है, अगर कोई बीजेपी में जाता है उसको माफ़ है, दूसरों को क्यों नहीं माफ़ी मिलेगी? तो मैं समझता हूँ हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, या वो सब लोग जो यहाँ के मामलात को देखते हैं, उनको एक बड़ा दिल लेकर अब रिकन्सिलेशन की भी ज़रूरत है, हीलिंग टच की भी ज़रूरत है, माफ़ी की भी ज़रूरत है। हाँ, ये कहा जाए कि अब तक जो हो गया सो हो गया, आइंदा के लिए हम किसी भी सूरत में किसी भी टेररिस्ट कार्रवाई को, किसी भी तशद्दुद को, किसी भी वायलेंस को, किसी भी इंटी स्टेट, इंटी कंट्री, इंटी नेशनल नारे को या प्रोपेगेंडा को हम आगे नहीं चलने देंगे, चाहे उसका अतलाक आम नौजवान पे भी हो, आम शहरी पे भी हो और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी हो, ताकि हम एक नई बिगनिंग से एक नए रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाएं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ मीडिया से भी, मैं हाथ जोड़ता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी लोगों से भी और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के साथ भी। मैंने पिछले पहले भी कहा था उनसे, वो ये है कि 60 साल 70 साल हमने जम्मू और कश्मीर के बीच लड़ाई लोगों की, और हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़, मुसलमान को हिंदू के ख़िलाफ़, डोगरा को कश्मीरी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब खुदा के लिए जब मामला दूसरी सतह पर आ गए हैं, अब जब जम्मू कश्मीर में 370 भी ख़त्म हो गया है, खुसूसी पोजीशन भी ख़त्म हो गई है, तो अब तो खुदा के लिए इन लोगों को एक दूसरे के करीब लाइए, ताकि इनके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें सभी लोगों को अपना अपना मुस्तकबिल नज़र आए। आप मायूसी ना फैलाएं, आप लोगों को डराएं ना, बल्कि उनके दिल जीतें। थैंक यू सर, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र मन्हास साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि अब जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए आगे सोचा जाए, क्योंकि साबका सरकारों की गलतियों और साबका सरकारों के लीडरान की गलतियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर यहाँ तक पहुँचा है। अब मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और कई बड़े सवाल भी ये छोड़ चुके हैं, खास करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस व दीगर जमातों पर, क्योंकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर ये लोग 370 और 35 को मजबूत करते तो आज जम्मू कश्मीर की हालत नहीं होती। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।